ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں، پنجاب حکومت کا صحت کی بہترین سہولت کے لیے انقلابی قدم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ہر شہری کو ہیلتھ کوریج فراہم کرنے کا فیصلہ۔ صوبائی کابینہ اجلاس میں یونیورسل ہیلتھ کوریج پروگرام کے لیے وزارتی کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ پولیس میں ڈی ایس پی اور ایس پی کی ترقی کے لیے سروس رولز کی منظوری دی گئی۔ پنجاب گورنمنٹ رولز آف بزنس جنوبی پنجاب کی بھی منظوری دی گئی۔ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ کابینہ نے پنجاب گورنمنٹ رولز آف بزنس برائے ساؤتھ پنجاب کی اصولی منظوری دے دی۔ کابینہ نے بکر میں تھل یونیورسٹی کے قیام کی بھی منظوری دی۔ بکر میں آرمی ویلفیئر اسکیم کے لیے الاٹ کی جانے والی 1626 ایکڑ اور 2 کنال اراضی کے متبادل زمین دینے کی منظوری دے دی گئی۔ متبادل اراضی یزمان اور فورٹ عباس میں دی جائے گی۔ کابینہ نے سرگودا راولپنڈی میں انسداد دہشت گردی کی 2 عدالتیں بند کرنے کی منظوری دی۔ پنجاب کابینہ نے صوبے کے ہر شہری کو ہیلتھ کوریج فراہم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چوک سرور شہید کے مکینوں کے لیے بڑی خوشخبری، چوک سرور شہید کو تحصیل کا درجہ دے دیا گیا۔ پنجاب کابینہ نے منظوری دے دی۔ کابینہ نے پنجاب کی 100% آبادی کو دسمبر 2021 تک ہیلتھ انشورنس فراہم کرنے کے لیے یونیورسل ہیلتھ کوریج پروگرام کی منظوری دی۔ یونیورسل ہیلتھ کوریج پروگرام سے متعلقہ امور طے کرنے کے لیے وزارتی کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ کابینہ نے ڈاک خانوں کے ذریعے موٹر وہیکلز ٹیکسوں کی وصولی کا اختیار واپس لینے کی منظوری دی۔ پنجاب اربن ایمویبل پراپرٹی ٹیکس ایکٹ 1958 کے سیکشن 16 میں ترمیم کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ترمیم سے نادرندگان کی جائیدادیں سیل کرنے کا اختیار محکمہ ایکسائز کو ہوگا۔ پنجاب پولیس میں ڈی ایس پی اور ایس پی کی ترقی کے لیے سروس رولز کی اصولی منظوری دی گئی۔ صوبائی وزراء، مشیران، معاونین خصوصی، چیف سیکرٹری اور دیگر نے اجلاس میں شرکت۔ جنوبی پنجاب کے دیہی علاقوں میں ترقی کی راہیں ہوں گی ہموار۔ ملتان، ٹیجی خان اور بہاولپور میں دیہی رسائی منصوبے کے لیے 5 ارب سے زائد فنڈز منظور کر لیے گئے۔ سرگودا کے دیہی علاقوں کی رسائی کے لیے بھی اربوں کے فنڈز منظور کیے گئے۔ چیئرمین پی این ڈی بورڈ کی سربراہی میں صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی اجلاس میں بڑا فیصلہ، ممبران اور متعلقہ سیکٹرز کے افسران نے شرکت کی۔ جنوبی پنجاب کے دیہی علاقوں میں ترقی کی راہیں ہوں گی ہموار۔ ایک اور اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ ایم این اے جاوید اقبال بڑائچ اور ڈپٹی کمشنر علی شہزاد کی کاوشیں رنگ لے آئیں۔ رحیم یار خان میں 300 ملین سے پختہ سڑکوں کی تعمیر و مرمت کی جائے گی۔ خان میں ترقیاتی کاموں کا جال بچھایا جا رہا ہے۔ ایم این اے جاوید اقبال وڑائچ اور ڈپٹی کمشنر علی شہزاد کی کاوشوں سے 300 ملین روپے کا ترقیاتی پیکج ملا ہے، جس میں ہائی وے ڈپارٹمنٹ کے تحت 18 سڑکوں کی تعمیر اور مرمت کی جائے گی۔ محکمہ ہائی وے کے تحت نئی سڑکوں کی تعمیر اور مرمت کا کام 280 ملین روپے سے مکمل کیا جائے گا۔ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے تحت 20 ملین روپے سے مختلف جگہوں پر سیوریج کے پروجیکٹ اور ٹف ٹائل کے منصوبے مکمل کیے جائیں گے۔ ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ طالب رنداوا نے میگا پروجیکٹ R8C میاں والی کروشیا کی تعمیر کا جائزہ لیا۔ کام تیز کرنے کی ہدایت کر دی۔ کہتے ہیں دیہی ہیلتھ مرکز میاں والی کروشیا کو 31 کروڑ روپے کی لاگت سے اپ گریڈ کیا جائے گا۔ رحیم یار خان میں وفاقی وزیر خسرو بختیار اور صوبائی وزیر خزانہ ہاشم جمع بخت کے آبائی علاقے میاں والی کروشیا کے دیہی ہیلتھ مرکز کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ طبی سہولیات ٹی ایچ کے اسپتال کے برابر ہوں گی۔ دیہی ہیلتھ مرکز میاں والی کروشیا کا توسیع منصوبہ 31 کروڑ روپے کی لاگت سے عنوان کے ہمراہ کام کا جائزہ لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسپتال کا منصوبہ مقررہ مدت میں رواں سال دسمبر تک مکمل کیا جائے گا۔ عوامی فلاح کے منصوبے میں تاخیر اور معیار پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ دوسری جانب وزیراعظم عمران خان سے ملتان کے نامور صنعتکار خواجہ جلال الدین رومی نے ملاقات کی ہے۔ وزیراعظم نے خواجہ جلال الدین رومی کی سماجی خدمات کو سراہا ہے۔ اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات میں وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ان کی حکومت نے تمام وسائل کا رخ جنوبی پنجاب کی طرف موڑ دیا ہے۔ زراعت سمیت دیگر شعبوں پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ کپاس کی پیداوار بڑھانے کے لیے نئے سیڈز کے علاوہ دیگر شعبوں پر بھی کام جاری ہے۔ اس موقع پر معروف صنعتکار خواجہ جلال الدین رومی کا کہنا تھا کہ حکومت کی بہترین پالیسی کی وجہ سے اس سال ریکارڈ ایکسپورٹ ہوئی۔ ملتان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور ایم ٹی بیت المال عوامی خدمت کے کاموں میں پیش ہے۔ ملتان شہر میں مختلف مقامات اور بازاروں میں پبلک ٹوائلٹس بنانے کا اعلان کر دیا۔ امجد مالک کی رپورٹ۔ مینیجنگ ڈائریکٹر بیت المال پاکستان اون عباس بپی نے ملتان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ کیا۔ صدر ملتان چیمبر آف کامرس خواجہ صلاح الدین، سینئر نائب صدر سید افتخار شاہ سمیت چیمبر کے ممبران سے ملاقات کی اور مختلف مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ صدر ملتان چیمبر آف کامرس خواجہ صلاح الدین نے کہا کہ ایم ڈی بیت المال نے شہر میں پبلک ٹوائلٹس کے لیے جگہ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ ملتان چیمبر شہر کے اہم مقامات اور بازاروں میں واش رومز کی تعمیرات کے لیے فنڈنگ کرے گی اور دیگر سماجی ترقیاتی کام بھی کرائے جائیں گے۔
कॉमर्स के बिहाफ पे मैंने इनको इंशाल्लाह ये एश्योरेंस दी हुई है कि इनके साथ फुल कोऑर्डिनेशन करेंगे, बेहतरीन कनेक्टिविटी रखेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द ही इंशाल्लाह इसी साल फर्स्ट हाफ के अंदर ही मुल्तान के जो तमाम बासी हैं उनको ये चैम्बर ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। एमडी बैतुल माल ओन अब्बास बप्पी ने चैम्बर की काविशों को सराहा। शहर में टॉयलेट समेत साफ पानी पर जल्द काम शुरू करने की यकीन दहानी कराई। ओन अब्बास बप्पी का कहना था कि पंजाब और जिला मुल्तान में जल्द हेल्थ यूनिवर्सल कार्ड लाए जाएंगे। मुल्तान में तेजाब गर्दी की मुतासरा फरहाना के मामले पर तहकीकात जारी हैं। रिपोर्ट आने पर मदद करेंगे। ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं। मैं कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुल्तान में पब्लिक एरियाज पे छोटे छोटे स्लॉट्स हमें दे दें, पोर्टेबल वॉशरूम्स बनाते हैं, साथ एक टैंकी रखेंगे। मुल्तान चैम्बर इनिशियली वॉशरूम बना देगा। गवर्नमेंट का काम सिर्फ वो जगह एलोकेट करना और सीवरेज का कनेक्शन देना है और पब्लिक एरियाज में वॉशरूम बनाएंगे। ओन अब्बास बप्पी का कहना था कि वजीर आजम इमरान खान जल्द मुल्तान आएंगे और सेक्रेटेरिएट का संगे बुनियाद रखेंगे और पार्टी वर्कर से मुलाकात भी करेंगे। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद से विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ्द ने मुलाकात की। वफ्द ने कमिश्नर मुल्तान को चैम्बर के मसाइल से आगाह किया। कमिश्नर ने वफ्द को मसाइल हल करने की यकीन दहानी करा दी। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन जावेद अख्तर महमूद से वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वफ्द ने चैम्बर सदर नबीरा फहद की क़यादत में मुलाकात करने वाले वफ्द में फिल्जा मुमताज, नादिया वसीम और फराज साकिब शामिल थी। वफ्द ने कमिश्नर मुल्तान को चैम्बर के मसाइल से आगाह किया, जिस पर उन्होंने वफ्द को मसाइल की हल की यकीन दहानी कराई। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद ने कहा कि कमिश्नर ऑफिस के दरवाजे हर खास और आम के लिए खुले हैं। हुकूमत पंजाब खवातीन की तरक्की के लिए अमली इकदाम कर रही है। खवातीन को कौमी तरक्की के धारे में शामिल करना नागुज़ीर है। होम बेस्ड खवातीन के हुनर की आलमी मार्केट तक रसाई बहुत जरूरी है। वफ्द के अरकान ने कहा कि वो मुल्तान की सकाफत को दुनिया में रोशनास करवाना चाहते हैं। फंड्स की कमी और किराए की अमारत अहम मसाइल हैं। अभी आपको ब्रेकिंग दे, मुल्तान बोसन रोड पर कमसिन बच्चे की लैंड क्रूजर चलाने का मामला। रोही की खबर पर सीटीओ मुल्तान जफर बुज़दार का नोटिस। सीटीओ के मुतलका लैंड क्रूजर को ढूंढने के अहकाम जारी। गाड़ी मिलने पर मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, सीटीओ का ऐसा कहना है। रोही की खबर पर सीटीओ मुल्तान जफर बुज़दार का नोटिस। बोसन रोड पर कमसिन बच्चे की लैंड क्रूजर चलाने का मामला। सीटीओ के मुतलका लैंड क्रूजर ढूंढने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। गाड़ी मिलने पर मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, सीटीओ का ऐसा कहना है। आपको अपडेट करे हैं मुल्तान से, जहां बोसन रोड पर कमसन बच्चे की लैंड क्रूजर चलाने का मामला। रोही की खबर पर सीटीओ मुल्तान जफर बुज़दार का नोटिस। सीटीओ के मुतलका लैंड क्रूजर ढूंढने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं, जबकि गाड़ी मिलने पर मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आपको अपडेट करे हैं मुल्तान से, जहां बोसन रोड पर कमसन बच्चे की लैंड क्रूजर चलाने का मामला पेश आया है, जिस पर रोही की खबर पर सीटीओ मुल्तान जफर बुज़दार ने नोटिस लिया है। सीटीओ के मुतलका लैंड क्रूजर ढूंढने के अहकाम भी जारी किए गए हैं, जबकि गाड़ी मिलने पर मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज भी किया जाएगा। गाड़ी मिलने पर मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, सीटीओ जफर बुज़दार का ऐसा कहना है। बोसिन रोड पर कमसिन बच्चे की लैंड क्रूजर चलाने का मामला। रोही की खबर पर सीटीओ मुल्तान जफर बुज़दार ने नोटिस ले लिया है। पीटीआई ट्रेडर्स विंग बहावलपुर की तकरीब। मरियम नवाज और बहावलपुर में पीडीएम रैली बारे बयानबाजी पर कशीदगी। पीटीआई और लीगी ताजर आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। ताजरों ने बीच बचाव करवाकर मामला रफा दफा करवाया। ताजरों ने बीच बचाव कराकर मामला रफा दफा करवा दिया है। पीटीआई लीगी और ताजर आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। मरियम नवाज और बहावलपुर में पीटीएम रैली बारे बयानबाजी पर कशीदगी हुई। पीटीआई ट्रेडर्स विंग बहावलपुर की तकरीब। मरियम नवाज और बहावलपुर में पीटीएम रैली बारे बयानबाजी पर कशीदगी हुई। पीटीआई और लीगी ताजर आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। ये मनाजर भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं। ताजरों ने बीच बचाव कराकर मामले को रफा दफा करा दिया है। मुल्तान में इलाज की गर्ज से अस्पताल ले जाए जाने वाले नशे के आदी नौजवान कार से उतरकर रजा हॉल की छत पर चढ़ गया। रेस्क्यू और पुलिस के जवानों ने उसे छत से उतारा और थाने मुंतकिल कर दिया। इसी हवाले से यासिर मजीद रिपोर्ट करेंगे। मुल्तान में इलाज की गर्ज से आने वाले अस्पताल में नशे के आदी नौजवान जो कार से उतरकर रजा हॉल की छत पर चढ़ गया और रेस्क्यू और पुलिस के जवानों ने छत से उतारा और थाने मुंतकिल कर दिया। रजा हॉल इंतजामिया ने पॉइंट ऑफ व्यू इख्तियार किया कि नौजवान खुदकुशी करना चाहता था। ये क्या मामला है, देखिए यासिर मजीद की इस रिपोर्ट में। मेरे भाई मुझे नवी जिंदगी से पकड़वा रहे हैं यार, मैं पागल हूँ, आपको पागल लग रहा। अस्पताल ना लेकर जाएं, मैं पागल नहीं हूँ। 30 साल नशे का आदी नौजवान कार से उतरकर रजा हॉल की छत पर चढ़ गया।
रेस्क्यू और पुलिस के जवानों ने इसे छत से उतारा। इंतजामिया का कहना था कि नौजवान ने रजा हाल की छत पर चढ़कर खुदकुशी की कोशिश की। दूसरी जानिब नशे के आदी नौजवान ने रोही को बताया कि भाई इसे पागल साबित करने पर तुले हुए हैं। मेरे भाई ना मेरे साथ सर ज्यादती कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये पागल है। आप अभी फोन करें सर सुप्रीडेंट साहब से, चीफ साहब से, कि मैंने किस तरह लवारती जेल काटी है। नशे के आदी नौजवान ने अस्पताल ना ले जाने के लिए इंतजामिया की खूब मिन्नत समाजत की, पाँव भी पकड़े, लेकिन इंतजामिया ने एक ना सुनी। आप आ जाओ नीचे, मैं साथ चलता हूँ, आपके भाइयों का कोई मसला है, टेबल टॉक करते हैं, कोई भी बात है, ऐसे खुदकशी हराम है तो आप मेरे बेटे आओ, आपके वालदा से भी आप इनके पास लेके जाए। ये नीचे आ गया, अब लेके तो इसको जा रहे। पुलिस एहलकारों ने शाहिद को तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। कैमरामैन आमिर शाह के साथ यासिर मजीद, मुल्तान। रहीम यार खान में इस्लामी यूनिवर्सिटी से इल्हाक शुदा कॉलेजेस के तलबा मैदान में आ गए। ऑनलाइन पेपरों के लिए दुआ चौक में एहतजाज किया गया। जिला इंतजामिया और वाइस प्रिंसिपल ख्वाजा फरीद कॉलेज प्रोफेसर खालिद महमूद की यकीन दहानी पर तलबा ने मुजाहरा खत्म कर दिया। आमिर भट्टी रिपोर्ट करेंगे। खान में इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर से इल्हाक शुदा कॉलेजेस के तलबा व तालबात ने दुआ चौक में एहतजाजी धरना दिया और मुतालबात के हक में खूब नारेबाजी की। दुआ चौक ब्लॉक होने से शहरियों को ट्रैफिक मसाइल का सामना करना पड़ गया। मुजाहिरीन का कहना था कि इस्लामी यूनिवर्सिटी नारवा सलूक खत्म करे, इल्हाक शुदा कॉलेजेस के तलबा व तालबात के पेपर्स भी ऑनलाइन लिए जाए। उन्होंने जो है ना कॉलेज अटेंड किए और ना इनके सिलेबस मुकम्मल हुए तो कोरोना की वजह से, तो ये शहर की बेटियां और शहर के बेटे सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडे पे वीसी साहब से बात कर रहे हैं कि बराए मेहरबानी इनके ऑनलाइन एग्जाम किए जाएं। और रोही की तौसत से बात मैं पहुंचाना चाहता हूं वीसी साहब तक कि इनके मुस्तकबिल के साथ खेलना बंद किया जाए। अपने स्टूडेंट्स के लिए कह रहे हैं कि कोरोना है, वहाँ कैंपस में नहीं बुला रहे, और हमारी तरफ जब हमारे एग्जाम्स होंगे तो क्या कोरोना छुट्टी भी होगा उस दिन? हम नहीं किसी के बच्चे, या हमारे साथ नाइंसाफी क्यों हो रही है? तलबा व तालबात का कहना था कि ग्रेड प्रोटेक्शन के साथ दोबारा डेट शीट जारी करके 50% सिलेबस भी दिया जाए। हमारा 50% सिलेबस किया जाए। हम कोई साइंटिस्ट नहीं है जो एक ही दफा में फौरन सिलेबस रट ले। इन्होंने सिर्फ हमें 10 दिन पहले हमारी रोल नंबर स्लिप अनाउंस कर दिया, डेट शीट आ गई है, इतनी जल्दी हम कुछ नहीं कर सकते। असिस्टेंट कमिश्नर सरमद अली भागत भी धरने में पहुंचे। उनका कहना था कि जल्द ही मसाइल हल कर लिए जाएंगे। होपफुली ये मसला रिजॉल्व हो जाएगा और जो भी जेन्युइन डिमांड्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। इस तरह के पढ़े लिखे जब लोग होते हैं तो वो मजबूर होकर रोड्स पे आ जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट बार सदर सरदार फलक शेर खान गुप्पांग एडवोकेट, जनरल सेक्रेटरी मिर्जा अमीन खान एडवोकेट और ऑडिटर कामरान आसिफ एडवोकेट भी तलबा और तालबात से इजहार यकजहती के लिए पहुंच गए। जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार मिर्जा अमीन खान एडवोकेट का कहना था कि वकला बरादरी तलबा और तालबात के साथ है। इन बेचारों का जो टाइम जाया हो रहा है या वेस्ट हो रहा है, इन बेचारों का क्या कसूर है, इसका हिसाब कौन देगा? इसका हिसाब तो इस्लामी यूनिवर्सिटी देगी ना। हमारा ये डिस्ट्रिक्ट बार का मुतालबा है, इनका जो टाइम वेस्ट किया उसका भी हिसाब दे, और दूसरा इनके फौरी तौर पे ऑनलाइन एग्जाम ले। तलबा तालबात ने जिले इंतजामिया और वाइस प्रिंसिपल ख्वाजा फरीद कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद की यकीन दहानी पर 6 घंटे के बाद धरना खत्म कर दिया। उनका कहना था कि फैसले का इंतजार है, अगला लाही अमल बाद में सामने लाएंगे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। खासी यूनिवर्सिटी डेरा गाजी खान के तलबा ने फिजिकल इम्तहानात के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और डॉट पुल को हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। फिजिकल इम्तहान के खिलाफ गाजी यूनिवर्सिटी डेरा गाजी खान के तलबा की जानिब से भी एहतजाज किया गया। एहतजाजी मुजाहरा कॉलेज चौक से शुरू हुआ जो बाद में डॉट पुल पर पहुंच गया। तलबा की जानिब से चारों सूबों के संगम पर वाक़े डॉट पुल को हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। हमारे सीधे सीधे मुतालबात ये हैं, इन्होंने हमें ऑनलाइन पढ़ाया है, हमसे पेपर भी ऑनलाइन लिए जाए। बाकी जो उन्होंने अपनी जो इंस्ट्रक्शन की है उससे हमें अभी कोई सरोकार नहीं है। बस हमें ये कहना है, जिस तरह दूसरी यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा के ऑनलाइन पेपर लिए हैं, इसी तरह हमें भी ये हक दिया जाए और हमें इस हक से महरूम न किया जाए। ये हमारा राइट है। ये मुतालबात हमारे माने जाएं। ऑनलाइन हमें पढ़ाया गया ऑनलाइन है तो हमसे जो ना पेपर भी ऑनलाइन लें।
इन्होंने हमें पढ़ाया ऑनलाइन है और वो कहते हैं कि ना आप फिजिकल पेपर दें, किस तरह हो सकता है। तलबा का कहना था कि यूनिवर्सिटी की जानिब से ऑनलाइन क्लासेस करवाई गई हैं, तो अब इम्तहानात भी ऑनलाइन लिए जाएं। हम सुबह से भूखे प्यासे यहाँ पर बैठे हैं, अगर कल की रात भी हमें यहाँ पे गुजारनी पड़ी इंशाल्लाह हम गुजारेंगे, और गाजी यूनिवर्सिटी को हमें ऑनलाइन एग्जाम का नोटिफिकेशन हमारे हाथ में देना होगा। उसके साथ जो 20% हमारी फीसें बढ़ाई गई हैं वो भी रिड्यूस करके नोटिफिकेशन हमारे हाथ में देना होगा, अदरवाइज यहाँ से हम उठने वाले नहीं हैं। तलबा ने डॉट पुल पर कैंप कायम कर लिए। उनका कहना है जब तक यूनिवर्सिटी की जानिब से ऑनलाइन पेपर लेने का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता तब तक एहतजाज जारी रखेंगे। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। साबिक वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की मुजफ्फरगढ़ आमद हुई। ज़िला जनरल सेक्रेटरी मज़र पहोड़ से उन्होंने मुलाकात की, मरहूम सफदर पहोड़ की वफात पर इजहार ताज़ियत किया और दुआ भी कराई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की मुजफ्फरगढ़ आमद। पीपल्स पार्टी लॉयर्स फोरम जनूबी पंजाब के नायब सदर मलिक सफदर एडवोकेट की वफात पर उनके अहल खाना से इजहार ताज़ियत किया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पीडीएम का ख्याल था कि असेंबली से इस्तीफे देने से सेनेट इंतखाबात मुअख्खर हो जाएंगे। निश्तर बंद यूनिट में डॉक्टर के मुबैना तौर पर पैरामेडिक स्टाफ से नामुनासिब रवैये का मामला। पैरामेडिक्स की जानिब से निश्तर बंद यूनिट में हड़ताल कर दी गई। ये रिपोर्ट देखिए। नश्तर बंद यूनिट में पैरामेडिक स्टाफ और इंतजामिया में ठन गई। डॉक्टर की जानिब से मुबैना तौर पर पैरामेडिक्स के साथ नारवा सलूक पर पैरामेडिक्स ने एहतजाज किया, जिस पर 50 के करीब पैरामेडिक्स को वार्निंग नोटिस जारी कर दिए गए। पैरामेडिक्स की जानिब से रद्द अमल के तौर पर मुकम्मल हड़ताल कर दी गई। हमारे साथ जो है ना डॉक्टर ने बड़ी बदतमीजी की है और थप्पड़ मारे, ठीक है, और ये कहाँ का असूल है कि किसी मुलाजिम को थप्पड़ मारे जाए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन थप्पड़ नहीं मार सकते किसी मुलाजिम को। पैरामेडिक स्टाफ की जानिब से एहतजाज किया गया और मुतालबात के हक में नारेबाजी की गई। मुलाजमीन का कहना था कि इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है। ये कहाँ का असूल है कि एक डॉक्टर ने थप्पड़ मार दिए और उसके बाद जब हम लोगों ने एहतजाज किया, इन्होंने माफी वर्बली मंगवा ली डॉक्टर से, उसके बाद हमारे खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। इन्होंने इंक्वायरी में उन लोगों का नाम डाला है जिनका उस चीज के साथ ताल्लुक भी नहीं है, उस मामले के साथ, इंसिडेंट के साथ। मुलाजमीन ने कहा कि मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल का सिलसिला जारी रहेगा। इंतजामिया का कहना है कि मुलाजमीन को वार्निंग नोटिस कुछ रोज कबल डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर जारी किए गए थे। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ बिलाल नियाजी, मुल्तान। दूसरी जानिब तालीमी बोर्ड मुल्तान का एहसन इकदाम, इम्तिहानात देने वालों की हाजिरी बायोमेट्रिक करने का फैसला कर लिया। अलिशा आसिफ रिपोर्ट करेंगी। मुल्तान तालीमी बोर्ड का इम्तहानात को शफाफ बनाने के लिए एहसन इकदाम। अब कोई किसी का पर्चा नहीं दे सकेगा। इम्तहानी सेंटर्स में बायोमेट्रिक सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा। मुल्तान बोर्ड की प्लानिंग ये है कि हम पूरे के पूरे सेंटर्स के ऊपर इस दफा जो नेक्स्ट एग्जाम है विच इज फार अवे, जो कि अभी थोड़ा सा दूर है, मई और जून में है, हम अपनी ये प्रोसेस को मुकम्मल कर चुके होंगे और तमाम सेंटर्स के ऊपर ही हम ये तमाम बायोमेट्रिक सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस कराएंगे। कंट्रोलर इम्तहानात हाफिज मोहम्मद इस्माइल ने रोही को बताया कि बायोमेट्रिक सिस्टम से तालिब इल्म का वक्त भी बचेगा और किसी किस्म की नकल भी नहीं हो सकेगी। हमें मैनुअल सिस्टम से जिसमें गलतियों के भी चांसेस होते हैं और जिसमें बाज़ औक़ात आपकी इम्पर्सोनेशन के चांसेस होते हैं कि किसी इम्पर्सोनेशन से मुराद कोई और शख्स किसी और की जगह एग्जाम दे रहा होता है, तो उससे भी हमें पता चल जाएगा उस बायोमेट्रिक अटेंडेंस से कि ये अंगूठा इसी का ही है और इसी की ही वेरिफिकेशन भी अब हमें हो जाएगी। मई और जून में होने वाले इंटर और मैट्रिक के इम्तहानात में 370 से ज्यादा सेंटर्स को बायोमेट्रिक बनाया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा अलिशा आसिफ, मुल्तान।